Hello students, welcome back to a new lecture of 11th Biology's practical section. So today we are going to see the fourth lecture or fourth practical rather, that is an observational practical that is based on the study of different modification of roots. In the previous practical we finished with the modifications of stem. So today we are going to see the modifications of root and we have four roots to observe over here. Basically first we'll just take a quick recap of the root, that is the organ of the plant, that is root. So we know root is the descending portion of the plant and which arises from the radicle of the seed. मतलब seed से plumule radicle ये दो outgrowths निकलते हैं, तो जो radicle है it modifies into the root system. And we also know they are basically root के then properties क्या है. Obviously roots are negatively phototropic, means obviously roots will grow in the direction opposite to light. इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि तुम सीड कैसे भी फेंक देते हो. सीड अगर उल्टा भी होगा तो अगर रूट निकल भी आए तो वो नीचे ही जाएंगे, मतलब they will grow in the direction away from light. That means they are positively geotropic, means they will grow in the region of मतलब where the soil is in that direction, and plus they are also positively hydrotropic. They will grow in the region where there is more water. So ये तीन स्पेशलिटीज है. थर्ड पॉइंट जो है, रूट्स डोंट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स होने ही चाहिए, तब हम उसे स्टेम बोलेंगे. बट रूट्स में नोड्स इंटरनोड्स नहीं होते. प्लस रूट्स ओनली बेयर सिमिलर ऑर्गन्स. सिमिलर ऑर्गन्स मतलब रूट्स को सिर्फ रूट्स ही आएंगे, ठीक है. फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स जो है, रूट हेयर्स वो है. तुम स्टेम को देखो, स्टेम को लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब आते हैं. सो स्टेम ग्रोज डिसिमिलर ऑर्गन्स, रूट्स विल ग्रो सिमिलर ऑर्गन्स. मतलब रूट्स विल ओनली गिव राइज टू अनदर रूट्स, स्मॉलर रूट्स इन दैट सेंस, और सिमिलर रूट्स. So these are the basic what you can say the differences between stem and root. Plus root also plays an important role, that is it is initial, they are always non-green, whereas stem at the initial part of its life is green, later on it turns brown or colorless जो हम बोलते हैं. But roots are always non-green because obviously they don't grow in the direction of light, they grow in the soil. So basically two types of roots again. We know that taproot and fibrous roots. Taproots are the true roots because these are the roots which directly develop from the radicle, whereas fibrous roots, they are actually the secondary roots, means the initial radicle will die off and from that growing point we get adventitious roots. So adventitious roots को हम true roots नहीं मानते, we call them as false roots, whereas tap roots are true roots because they develop from the radicle of the seed. ठीक है. तो ये फर्स्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन टैपरूट एंड फाइब्रस. टैपरूट में हमको पता है एक मेन रूट होता है, फिर उसको सेकेंडरी रूट, फिर उसको टर्शियरी, ऐसे करके रूट है जाता है. जबकि एडवेंटिशियस में ऑल रूट्स आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर लेंथ बिकॉज दे ग्रो फ्रॉम वन पॉइंट. सो देयर आर नथिंग लाइक प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स. ऑल द टाइप्स ऑफ रूट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन लेंथ इन fibrous. Third is the taproot grow deep, whereas fibrous don't grow that deep, but they cover a lot of area in that sense. So they only grow up to few centimeters in the soil, whereas taproots can go as deep as they can go up to the ground, underground water level. Then again taproots are mainly seen in dicots, whereas adventitious roots are mainly seen in monocots. So these are the basic differences. And then the roots के functions. So we know the functions of roots. Basically दो ही main function है. Anchorage, to give support to the plant, anchor it well. Second is to absorb water and minerals from the soil so that they can transport it to the aerial parts. ये main functions हैं. Now apart from that, due to some obviously in the environment they live, the conditions they are living in, plants modify these functions. Means roots are modified for certain more functions apart from anchorage and what you can say the absorption of water and minerals. मतलब यहाँ पे जितने हैं कुछ तो मतलब अभी भी वो कर रहे हैं, मतलब जैसे radish का हम देखेंगे, when it is still growing it is still absorbing water minerals, वो तो है ही. Anchorage तो कर ही रहा है, plus additional it is doing some important work. So today we are going to see two
ऑफ द मतलब दिस इज अ मॉडिफिकेशन, दो जो है वो टैप रूट मॉडिफिकेशंस है एंड दो जो है वो एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस है. सो न्यूमैटोफोर्स एंड फ्यूजिफॉर्म ये टैप रूट के मॉडिफिकेशंस है. पैरासाइटिक रूट्स एंड एपिफाइटिक रूट्स ये स्पेशल फंक्शंस में हम पकड़ते हैं, बट नेवरदलेस दीज आर एडवेंटिशियस के सब टाइप्स में हम पकड़ते हैं. स्पेशल कैटेगरी क्यों तो देखेंगे. फर्स्ट वी विल सी ईच वन ऑफ इट. फर्स्ट वन इज फ्यूजिफॉर्म. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मॉडिफाइड टैप रूट. ये तुम्हें याद रखना है, मॉडिफाइड टैप रूट व्हिच इज मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. क्योंकि अगेन दीज प्लांट्स आर शॉर्ट लिव्ड, मतलब साल भर में जब रेनी सीजन होता है उसके बाद विंटर्स, तो उन दरमियान में ये जिंदा रहेंगे. जैसे समर सीजन आते हैं ये अपने लीव्स झड़ा देते हैं, तो ये अंडरग्राउंड रूट जमीन में सरवाइव करता है. अगेन व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस कम it will sprout back and again it can live. So it's like again an organ of perennation जैसा जो तुम बोल सकते हो, but ये एक root है. root कैसे पता चलता है? because you can see it has small root hairs. That's the first function, modified function. दूसरा, how to identify it? Because we know in types of modification of storage there are three types. First one तो this is fusiform. दूसरा है कोनिकल, जिसका एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल हमको पता है इज कैरेट. ठीक है, कैरेट जो है वो एक एग्जांपल ऑफ कोनिकल आता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो कैरेट हाउ दे लुक. सो दे आर कोनिकल इन शेप, दैट इज ब्रॉडर एट द टॉप एंड नैरोर एट द बेस. whereas fusiform here you can see it is swollen in the middle and it is tapering at both the ends. ठीक है, तो radish उसमें का एक एग्जांपल है. और एक है नैपिफॉर्म करके, जिसमें टर्निप या बीट रूट्स हम देख लेते हैं कि इट इज वेरी मच ऑब्लॉन्ग एट द टॉप एंड वेरी नैरो एट द बॉटम. सो जनरली बीट रूट्स देखो तो ऊपर से बड़े स्वोलन स्पेरिकल्स है, निचला टिप काफी नैरो होता है. सो दैट इज नैपिफॉर्म एंड ये है फ्यूजिफॉर्म. सो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ आते हैं, conical, napiform and fusiform. We have fusiform over here in the experiment, so we are learning this. So दो points to remember: modification of taproot, दूसरा swollen in the middle, tapering at the ends. Main function उसका storage of food. Example एक ही है Raphanus sativus, that is radish, मोड़ा जिसे अपन कहते हैं. ठीक है, next one मैं पहले pneumatophore लेता हूँ, तो हम taproots का ही खत्म करेंगे. Again this is a modification of taproots. उसका डायग्राम भी मैंने यहाँ ड्रॉ किया है. नाउ एक्चुअली इसके लिए मतलब ये रूट्स स्पेशली उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जो स्वैम्प एरियाज, मतलब दलदल वाली एरियाज में, प्लस सी शोर्स. ठीक है, वहां पे है, तो इन्हें हम हैलोफाइट्स कहते हैं, जो समंदर किनारे उग रहे हैं. हैलोफाइट्स मींस, हैलोस मींस सॉल्ट बेयरिंग प्लांट्स. सो ऑब्वियसली ये खारे पानी में उगते हैं एंड ऑब्वियसली इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हाउ टू ब्रीथ, बिकॉज the roots of these plants are always submerged in waters. ठीक है, at least not always but at least during say high tides. ठीक है, तो ये submerged होते हैं. low tides में वापस शायद पानी उतर जाए तो अलग बात है, but कुछ प्लांट जो exactly sea shore पे है तो उधर ऐसा हो सकता है कि the plants and roots are always submerged under the water. So the main problem is how the roots are going to breathe. तो सिंपल एज दैट मॉडिफिकेशन है. तो इसमें से टैप रूट्स के कुछ ब्रांचेस दे ग्रो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. रूट्स का नॉर्मल फंक्शन है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि दे विल ऑलवेज ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सॉइल, बट दीज विल ग्रो अबव द सॉइल. हियर यू कैन सी दिस पिन पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स ओवर हियर. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर द न्यूमैटोफोर्स. ठीक है, और रेस्पिरेटरी रूट्स, हम इन्हें रेस्पिरेटरी रूट्स के नाम से भी जानते हैं. Why? Because they are meant for respiration. Simple as that. They bear lenticels. They have small minute holes in them, with the help of which it can take in air and give out oxygen. That is for respiration. So the main and sole purpose is mainly to aid respiration. That is for gaseous exchange. ये कहाँ मिलते हैं? तो rhizophora and heritaria, that is सुंदरी trees, जो वेस्ट बंगाल में हम सुंदरबन एरियाज बोलते हैं. तो नाम ही उसी से दिया गया है, सुंदरबन. बन मींस जंगल होता है, सुंदर इज बिकॉज द फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ सुंदरी ट्रीज एंड दैट्स इट्स बाइनोमियल नेम एंड दैट इज सुंदरी ट्रीज कॉमन नेम. राइजोफोरा इज आल्सो मैंग्रोव्स. तो सादी भाषा में हम इन्हें मैंग्रोव्स के नाम से जानते हैं, जो जनरली समंदर किनारे ग्रो होते हैं.
सो ये मैंग्रोव्स जनरली विल प्रोड्यूस दोस न्यूमैटोफोर्स। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाना इधर है नहीं, इसलिए हम लोग इसे ऐसे ही देख रहे हैं, इसके लिए समंदर किनारे जाना पड़ेगा फॉर दैट। सो न्यूमैटोफोर्स इन्हें कहते हैं। सबको समझा? ओके, नेक्स्ट वन, दीज आर स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज द पैरासाइटिक रूट्स। पैरासाइटिक रूट्स को हम लोग हॉस्टोरिया या सकिंग रूट्स के नाम से भी जानते हैं। नाउ दीज आर प्रोड्यूस्ड, दीज आर स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक रूट। देख सकते हो जो ग्रीन मेन स्टेम है, तो ये क्या करते हैं अपने नोड्स से रादर अपने स्टेम जो है इसका अपनी जगह जगह से ऐसे छोटे छोटे बोल सकते हैं ना पेनिट्रेटिंग रूट्स जो मेन स्टेम के अंदर तक चले जाए, एंड वो कहां तक जाते हैं तो उसके वैस्कुलर बंडल्स तक, एंड वहां जाने के बाद ये डायरेक्टली उधर से रेडीमेड मतलब अगर इफ इट पेनिट्रेट्स जाइलम जैसे विस्कम एल्बम में है, इट्स अ पार्शियल पैरासाइट वेयर द रूट्स ओनली पेनिट्रेट द जाइलम। सो व्हाट इट विल जस्ट एब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स एंड फॉर इटसेल्फ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगा, जो होस्ट प्लांट है इट गेट्स डिवॉइड ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑन द अदर हैंड कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, जिसे अपन देवदर या हम उसे अमरवेल के नाम से भी जानते हैं, सो इट्स अ टोटल पैरासाइट वेयर इनके रूट्स जाइलम फ्लोएम दोनों तक जाते हैं, तो खाना भी छीन लेता है, पानी मिनरल्स भी ये जो बेल है वो छीन लेती है with the help of these hostorias or sucking roots, making the host plant vulnerable, and hence the host plant will die sooner or later. But this amarvel or this plant is going to survive because of the derived nutrients from these hostorias from the host plant. So these are specialized root known as sucking root meant to absorb nourishment from the host plants. Obviously it's a parasitic mode, but for मतलब survival प्लांट ये टेक्निक अपनाते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स लर्न करने, एक पार्शियल पैरासाइट और एक टोटल पैरासाइट। ये सिर्फ जाइलम से पानी मिनरल खींचेगा, ये जाइलम फ्लोएम खाना भी खींच रहा है, पानी मिनरल्स भी खींच रहा है। सो ऑब्वियसली जो होस्ट प्लांट है ना खुद खाना बना पाएगा ना फूड बना पाएगा, एंड द होस्ट प्लांट ऑब्वियसली इट विल डाई सूनर। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइटिक रूट्स। And the last one for the day is the epiphytic roots. Obviously हमें tropical areas में ज्यादा मिलेंगे क्योंकि epiphytic plants वहां मिलते हैं, क्योंकि जहां पे हमें पता है what you can say tropical areas में घने जंगल होते हैं, evergreen forest होते हैं, तो उधर की जो पेड़ों की कैनोपी है, कैनोपी मतलब जो ऊपर का घेर है वो इतना बड़ा होता है कि सनलाइट नीचे नहीं आ पाती। तो कुछ प्लांट्स ने लॉजिकल मतलब दे हैव एडवांस्ड इट इवॉल्व किस तरीके से कि वो दूसरे प्लांट्स के बाग्स पे ग्रो हो जाए। अब दूसरे प्लांट्स के बाग पे ग्रो होगे तो उनके अपने अपने एडवेंटिशियस रूट जरूर है, ठीक है, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट लाइक अ पैरासाइटिक मोड। सो प्रॉब्लम है पानी कहां से लाएं, ठीक है, पानी मिनरल कहां से लाएं। सो ऑब्वियसली एक चीज और होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, मॉइस्चर काफी हवा में होता है। सो उन्होंने क्या किया, दे हैव मेड सम मॉडिफिकेशंस इन रूट वेयर द रूट्स आर फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस। Now these roots have a specialized tissue known as velamen tissue. Velamen tissue is rich with hygroscopic material, जैसे cellulose, pectin, ये strong hygroscopic materials होते हैं। तो वैसे hygroscopic chemicals which have a tendency to absorb water from the air, तो ये roots नमी खींच लेते हैं जिससे, और वो पानी प्लांट अपने रेगुलर रूटीन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। So these hanging roots helps to what you can say absorb extra water for the survival of the plant. Plus कुछ varieties में ऐसा देखने को मिलता है कि epiphytic roots थोड़े से greenish भी होते हैं, and when we say greenish, so तुम समझ सकते हो they also up to some extent obviously leaf जितने green नहीं होंगे, they will be very light green, dull green, but still they are green means they have chlorophyll means they can perform फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो ये हमें देखने को मिलता है। इसके तीन एग्जांपल्स बुक में दिए हैं, वैंडा, डेंड्रोबियम एंड ऑर्किड्स, ठीक है। सो ये है एपिफाइटिक रूट्स के फंक्शंस। तो इसमें व्हाट टू रिमेंबर इज वेलमेन, ऑब्वियसली दीज आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, ये वाला मिल सकता है हमें, एंड ऑब्वियसली रेडिश तो सबने देखा ही होगा, बाकी दोनों देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बाहर सफारी करनी पड़ेगी फॉर दैट। सो होप सो ये रूट्स सबको समझे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में गाइस, टिल देन बाय बाय।